मुझे लगता था यार ये कुछ बनना चाहता है, वो कुछ बनना चाहती है, हम्म। एंड मैं एक बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ Yeah, yeah. आई हैव मच पोटेंशियल देन दैट। हम्म, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई एज आई टोल्ड यू दैट नहीं, आई वांटेड टू प्रूव लाइक प्यार सब कुछ नहीं होता है, प्यार हम्म, होता है बट बहुत हम्म, कुछ होता है, बट सब कुछ हम्म, नहीं होता है, एंड हम्म. समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड। So hello everyone, welcome back again to a new episode of the Unsalted Talk. आज हमारे साथ है अंशिता मैम और बात करेंगे हम आज काफी सारे टॉपिक्स के ऊपर. विल डिस्कस she studies outside India, so yeah, we'll get a perspective of how the education system is actually outside India, and what are the factors you should be considering if you are going to study abroad, and a lot of things concerning to research and literature and all. Okay, so yeah, अंशिता आप एक बार ना अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है? तो ऑडियंस को एक बेटर आइडिया रहेगा कि मतलब आप कौन हो, क्या करते हो. Okay, basically I'm a researcher, and I'm pursuing my PhD from Moscow Institute of Physics and Technology, and like I'm also writing, and I write novel, and I also work for the people who can't speak their pain and suffering, and it also help for the anthologies. I provide them a platform to write so that they can join, and even if they are not a good writer, so I will edit their work so that they can be more confident while writing. So it supports them to show or uh, to make their emotions writable. या तो आपने बताया, बहुत अच्छी तरह से बताया. तो बेसिकली आप एंथोलॉजी एडिटर हो, आपका अपना शायद पब्लिशिंग, यू हैव योर ओन पब्लिशिंग हाउस. Yes, recently I have started that. Yeah, so yeah, that's a great news. Again, congratulations from my side and from my audience. Like, hope you do great in that field also. You are a researcher, okay? And recently I was visiting your LinkedIn profile. In which subject can you specify you are doing your research? Actually, my research is a little versatile. Like in my masters, I have done for the Parkinson diseases, and for network security, and to create the smart home environment and a smart hospital environment so that we can protect our home or hospital from the intruders attack. And basically I'm working with the cyber security, Okay, network yeah. security. So network and cyber security department, right? Yeah, yeah, Yes. yeah. So, are you loving the education out there? Yes, of course. एक अच्छा experience होता है. It is like when you are going, when you are doing something out of the box. Yeah. It's like it's not impossible for everyone, Hmm. but Yeah, we'll I talk belong about that. to. How you made that possible, we'll talk about that a lot, But yeah, what I want to know now is that how you are loving it, as you said, if you're doing it out of the box, it's just a food for your brain, it's just a boost to your creativity. That, yeah, you are doing, one of the 100 jobs that others are doing. You're doing, you are following your passion, you are doing it in a way, I would say, that most people aren't doing or actually aren't thinking about that. Yeah. Yes, of course I'm feeling. Sometimes I feel overwhelmed, and it's mixed emotions, kind of happiness, and sometimes I feel pride on myself. So it's Yeah, a bit of mixed emotion. yeah. So yeah, as a person, I know you a lot, rather than your audience, which I think by the end of this podcast, they will know you a lot better. But yeah, before we go on to the things that you are doing now, we'll go to a little bit back. How this journey started. How you started from being a college student in India to dreaming of studying outside, and how you finally made it. Just walk us through this journey, this amazing journey. Um, okay. I think it is going to be hard for me to revise the entire past thing. It's like I'm
द यूजुअल गर्ल, मैं एक छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे 80,000 पीपल आर लिविंग हियर, एंड यहाँ की बहुत ही ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है. they like to go outside is a huge task to do. जब मैं 10th में थी तो मेरे पापा ने सबसे लड़कर टू वेंट अगेंस्ट ऑल ऑफ देम एंड दे सॉरी, so I went outside to study Kota, to go Kota and study there. एंड सबकी तरह मैंने भी जेई का एंट्रेंस के लिए फाइट करने के लिए रेजोनेंस ज्वाइन किया था, लाइक द मोस्ट ऑफ द क्राउड, बट आई नेवर वांटेड टू बी द मैथ स्टूडेंट बिकॉज आई हेटेड मैथ्स एंड आई स्टिल डू hate maths. Same page. Yeah, क्योंकि most of the students ले लेते हैं just because of the family pressure or something, but they don't want to pursue that. और मेरे मैटरनल फैमिली में सब लोगों के पास मैथ्स था, तो मेरे मॉम डैड ने भी बोला तू मैथ्स ले ले, इंजीनियर तो बन ही जाएगी. एंड आई वांटेड टू टेक बायोलॉजी बिकॉज मेरा बायोलॉजी बहुत अच्छा था, केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा था. बट मेरे लिए यहाँ से बाहर निकलना ही एक चैलेंज था. लाइक मेरे मॉम डैड एंड मैं और मेरे मॉम डैड against the entire family, because I belong to the joint family where I have 8 my father has 8 sisters and 7 brothers, and all were living at the time. सब लोग एक ही जगह रहते थे, तो सबका परमिशन मैटर करता था, सबकी ओपिनियन मैटर करती थी, and so it was a hard task to do, and I made it. I threatened my father. Then my mom convinced him, and मेरी मॉम का मुझे बहुत सपोर्ट रहा. देन मेरा भी सबकी तरह एक यही सपना था कि शादी करने के बाद बच्चे पैदा करने हैं, जस्ट लाइक अदर फीमेल, एक नॉर्मल हैप्पी लाइफ चाहिए. देन इट इज लाइक 11th-12th मेरा पूरा मुझे बिल्कुल नहीं पढ़ना था. देन मेरा सिलेक्शन हो गया ITU के कॉलेज में, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी in Jaipur. I went there for my graduation, and मुझे second year तक मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मुझे ये करना है. बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बैक भी लग रहा है तो भी मुझे ही क्लियर करना है, पढ़ना तो मुझे यही पड़ेगा, because I wanted to do fashion designing. If not the biology or medical, then I wanted to do fashion designing because I found myself very creative. So मैंने सब कुछ सर्च करा, बट मेरे पापा ने मुझे अलाउ नहीं करा उधर. फिर उसके बाद मैंने 3rd year से पढ़ना स्टार्ट किया, तो मेरे थोड़े से ठीक ठाक परसेंटेज बन गए. आई गॉट 69.4%, विच इज लाइक, मुझे बाद में दुख भी हुआ कि लाइक 0.6% से ही मैं पीछे रह गई ऑनर्स की डिग्री से. सो आई डिडंट गेट द ऑनर्स डिग्री. फिर मैं 2 साल जॉब करती थी IIFL में, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, बिकॉज मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रही हूँ. आई वॉज सर्चिंग माई सेल्फ. उस टाइम में कंटेंट राइटिंग का मैंने भी पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, बिकॉज आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, एंड मैंने पापा को बचपन से स्ट्रगल करते हुए देखा है. So it was like I wanted to earn also. I used to take coaching classes. I used to take extra jobs so that I can make money to help my father in my accommodation and something. So it was like पापा को सिर्फ फीस पे करना पड़ता था और रहने का सब मैं निकाल लेती थी. फिर उसके बाद मैंने मास्टर्स करने का सोचा. आई हैव टेकन द MBA क्लासेस फ्रॉम द टाइम इंस्टीट्यूट, व्हिच इज मोस्ट फेमस इन देयर टाइम और टुडे आल्सो. बट उसके बाद मेरा MBA से इंटरेस्ट हट गया, बिकॉज मुझे अभी भी वो क्रेज था कि मुझे अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है. एंड आई थिंक मुझे एम्बिशियस मेरी एक ब्रोकन रिलेशनशिप ने बनाया. It is like कभी कभी तुम अपने आप को खोज लेते हो खुद को तोड़कर. तो it was the moment for me. I found myself while losing someone. क्योंकि ऐसा होता है कि when you lose a part of yourself, तो then you will realize that what you lose and why you lose. So I wanted to prove myself that I am also wannabe, or I am also deserve something to be better than you or something. So it was like I joined Masters of Technology from Vanasthali, and then I got an internship
for an year from Jawaharlal Nehru University. क्योंकि मास्टर्स के बाद एक मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के बाद you need to go and join either join some company to do a project, or you have to do any dissertation so that you can be a researcher. So I needed to do PhD, and for PhD I took JNU. I got also offer from the Kanpur IIT Kanpur, but I didn't join that. And before that मेरा पहले से ही बाहर जाने का था. मेरे बैचलर के बाद मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए थे, and as I told you that I belong to the middle class family. तब मेरा किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन में भी एडमिशन हो गया था, बट मेरे पापा ने मुझे जाने नहीं दिया. एंड आई टोल्ड यू मेरे लिए नोएडा से बाहर निकलना ही एक चैलेंज था. तो वो उस टाइम मैं 21 इयर्स की थी, तो मैं मेरे पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर पाई. देन आई ड्रॉप द प्लान. देन अभी मुझे रियलाइज होता है कि हाउ मच किंग कॉलेज ऑफ लंदन इज रियली इम्पोर्टेंट. इट्स अ वेरी बिग थिंग, लाइक इट इज इन द टॉप 30. अब मुझे नहीं पता था. It was the moment that I lost, but still I am happy that I made something big by now. फिर मास्टर्स के बाद I have joined Arya College, which is famous in Jaipur, and मैंने वहाँ पे पढ़ाया. Then I also I also taught many languages at RIET Jaipur. So it was a good experience. But मेरे एक कलीग थे, मेरे एक सीनियर थे, अहमद अजीज. he is from Egypt, and he came to JNU for his PhD. Then he used to provoke me, and he used to always boost me up कि नहीं तुम्हें बाहर जाना चाहिए, you should go outside, you don't belong here. After my masters, he was the only one who never gave up on me. And he was another mentor, you can say that, because मेरे दिमाग में उन्होंने ही भरा. Try for outside, don't waste your time here, you belong to outside. At that moment I have started searching and for the colleges, and it was like I have given my 2 years. At the time I have realized that मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने 2 साल दे दिया, I can't waste my more time. So मैंने सोचा इंडिया के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लेती हूँ, because and at the time of the June 2019 I got the 3 jobs opportunity, and 3 colleges for outside, from outside, like 2 from New Zealand and 1 from Moscow. New Zealand is far away from my family. So of course I chose the MIPT, and it is in top 100 university, and जो New Zealand के और Australia के colleges थे वो top 400 में थे. So this is the better option for me, and I always wanted to move to Europe. So it is near to that. So that's how I went there. Because when I had nothing, it was a time of it is the phase of your life when you are on downside. And I don't have the job also, no content writing work, no part-time jobs. And my one of the best friend used to tell me that जब सब जॉब कर रहे नहीं थे तब तुम जॉब करती थी, कोई जॉब नहीं करता था. एंड जब सब जॉब करते हैं तब तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं है. तो शी ऑल्सो फील्स पिटी ऑन मी कि मेरी लाइफ मुझे कहाँ पे लेकर आ गई. बट आई थिंक इट मेड मी स्ट्रॉन्गेस्ट इवन. Like I don't know what to say, आपने अपनी कहानी बताई. As you said, one thing जो लोग देख रहे हैं उनके लिए, जिससे कहा अंशिता ने कि आप अपने आप को कब एक्सप्लोर करते हो, जब आप अपने सबसे वल्नरेबल स्टेट में होते हो. ये एक चीज, वो किसी के वजह से भी हो सकता है, वो कोई भी सिनेरियो हो सकता है. दैट मे बी अ रिलेशनशिप, दैट मे बी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर दैट मैटर, और एनीथिंग. जब आप वल्नरेबल हो, जब आपको पता है कि आपके पास और वो जमीन भी नहीं है जो आपके नीचे से खिसक सकती है, तो उस टाइम में ही आप अपने आप को एक्सप्लोर करोगे. और अंशिता, आपने कहा कि आप कहाँ से आती हो, फ्रॉम वेयर यू बिगैन योर जर्नी टू वेयर यू आर नाउ. इट्स लाइक it's just like a cinematic thing.
हम मूवियों में देखते हैं ऐसी चीजें, बायोपिक बनती है, कहानियां बनती हैं, तब हम देखते हैं कि ऐसे कहानियां होती हैं, बट एक्चुअली रियल लाइफ में आई एम प्राउड कि मैं बैठ के आज ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपके साथ कर रहा हूँ, कि रियल लाइफ में भी ऐसे लोग होते हैं. इट्स जस्ट दैट वी जस्ट टर्न आवर ईयर्स अवे फ्रॉम देम, और कि उनकी कहानियां पहुंचती नहीं है, मतलब टू द वाइडर ऑडियंस, क्योंकि ऑब्वियसली मैनी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस लव कमर्शियल थिंग्स, थोड़ी सी जो रियलिटी बेस्ड चीजें होती है, द बिटर टेस्ट ऑफ रियलिटी, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट, समटाइम इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट. अपने अपने मेंटर के बारे में कहा कि ही वाज द वन हु बिलीव्ड इन यू, हु पोक्ड यू अ लॉट, एंड वो कहता है ना कि फरिश्ते होते हैं कभी कभी, वो किसी फॉर्म में आते हैं, और दे जस्ट change the course in which you usually have to go. They just make you take that U-turn in your life, and you just reach another level of success. तो अभी आपने इतनी मतलब कही, आपने ये कहा, तो एज ऑफ नाउ, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप जाके पढ़ रहे हो एक जगह में, रिसर्च कर रहे हो वहां पे, तो अभी जो लोग आपको रोकते थे, मे इट्स बी योर पेरेंट्स और आपकी सोसाइटी, उनका अभी भी दे हैव दैट सेम मेंटल स्टेट, और इट्स लाइक समवट, हाँ कर रही है तो ठीक है, अब तो क्या ही कर सकते हैं? हाउ इज दैट No, देयर मेंटल स्टेट नाउ? people can't stop poking you. I don't know what's the problem with them. It's like I still know that जब मेरा 10th में एडमिशन था, तो मेरे कुछ रिलेटिव्स थे, they used to say that, क्योंकि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मेरा कभी पढ़ाई में मन था ही नहीं, क्योंकि इट्स लाइक मैं हमेशा एग्जाम में पढ़कर पास होती थी, एंड आई डोंट नो मुझे फर्स्ट डिवीजन कैसे आ जाता था. आई स्टिल डोंट नो. मेरे टीचर्स लोगों को भी बिलीव नहीं होता था कि मैं अच्छे मार्क्स कैसे ले आती हूँ, जबकि मैं बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ. तब मुझ पे शायद किसी ने फेथ शो नहीं करा था, एंड वो होता है ना, हम हमेशा एक वैलिडेशन देखते हैं कि किसी को, कोई तो हमें आकर कुछ बताए. मेरे रिलेटिव्स तब भी बोलते थे कि इट्स लाइक इसके ऊपर पैसा वेस्ट कर रही हो बाहर बेच कर, डोंट वेस्ट योर मनी, लड़की है, क्या कमा कर देगी तुम्हें. एंड मेरे पापा, माय फादर यूज्ड टू से दैट she will she will stand on her legs, and it is the entire money for me. So sorry, wait for a minute. मुझे हमेशा लगता था कि जो सेलिब्रिटीज रोते रहते हैं वो हमेशा हंसी रोते हैं. नाउ आई कैन फील दैट उनका भी इमोशंस होते होंगे. So I can totally relate them now. नहीं, सबका मैं सोचता हूँ, इट इज नॉट दैट हम देखते हैं कि यार वो सेलिब्रिटी है या वो इसने इतनी सक्सेस अचीव कर ली है, बट एट द एंड एवरीवन इज अ ह्यूमन बीइंग, एवरीवन हैज दैट इमोशन, दैट वल्नरेबिलिटी इनसाइड देम. और कहीं ना कहीं भी लाइक मैं भी सोसाइटी को ऐसे दिखा सकता हूँ, यार मैं तो कभी रोता नहीं हूँ यार, आई डोंट हैव इमोशंस, आई एम दैट स्टड गाय ऑफ दैट ग्रुप. बट या एट द एंड मैं रात को आके अपने बेडरूम में रोऊंगा, क्योंकि आई हैव इमोशंस. मैं कोई अच्छी मूवी देखूंगा तो मैं रोऊंगा. व्हेन आई हैव दैट नॉस्टैल्जिया दैट यू आर नाउ फीलिंग, कुछ ऐसे अचानक से याद आता है कि यार हम उस टाइम में गाली देते थे, या हम उस टाइम में उनको बोलते थे यार आप कुछ नहीं कर रहे हो, या आप कर रहे हो, हमें नहीं लगता था यार यू शुड ट्राई पुश मोर, बट व्हाट यू हैव डन एट दैट स्टेज, इवन माय पेरेंट्स, आई एम प्राउड ऑफ दैट, एंड आई थिंक एवरी किड शुड बी प्राउड ऑफ देयर पेरेंट्स. वो लोग अपने हिसाब से स्टेप्स ले रहे हैं. यू शुडंट इमेजिन कि यार ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बट लुक एट दिस वे दैट दे आर डूइंग समथिंग फॉर यू. या और आपने कहा your father is such a great person, he has done that things for you. मैं like I have no words for here to explain. मतलब एक कस्बे में इट इज वेरी बिग टास्क कि तुम अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए, एक लड़की की पढ़ाई के लिए जो शादी करके कहीं जाने वाली है, तुम उसके लिए अपना, मतलब दैट हाउस वाज टू ब्यूटीफुल, इवन आई मिस दैट हाउस. तो इट वाज द biggest step he has taken in his life for me. And you are proud of it, and as I said, you are the answer to all the questions that the society asked. You don't have to give answers to anyone. That validation, I was also seeking that for a long time. मुझे वैसा लगता था यार इतना कर रहा हूँ यार, कोई क्यों नहीं बोल रहा है, कोई क्यों अप्रिशिएट नहीं कर रहा है. आई नो कि लोगों को समझ नहीं आता, जब आप थोड़ा सा इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब जो टिपिकल लाइंस हैं जिनको लोगों को जो समझ में आता है,
उनसे थोड़ा सा अलग जाओगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो। और फिर क्योंकि आपको चाहिए वैलिडेशन, यू नो, एज अ ह्यूमन बीइंग सबको चाहिए कि हाँ यार, एक आई जस्ट नीड दैट वन पर्सन हु कुड वैलिडेट मी, हु कुड से, यू नो, कीप गोइंग, at least that's the word, you know, keep going, you are doing And that great. And I think your mentor did that. He appreciated you, he believed in you, and he just showed you, you know, you are meant to be there, Anshita, you are meant to go there, you are meant to crack there, you have to live your life there, you know. That's great, interesting, you know. That's because just, every time I visited the JNU, yeah, he took me out for a juice or for a coffee, and yeah. he brainwashed me. No, you need to go. मतलब उन्होंने कभी give up नहीं करा. I Hmm. appreciate that, and I also appreciate my mother. Hmm. At the time of my PhD, मेरे पापा मुझे अपने आप से दूर नहीं भेजना चाहते थे. वो इंडिया में मुझे कहीं पे भी भेजने को ready है, but वो मुझे बाहर नहीं भेजना चाहते थे. And when I left the India, he cried first for the first time. वो मुझे कभी जयपुर छोड़ने आए तब नहीं रोए, वो मुझे कोटा छोड़ने गए तब नहीं रोए, but at that moment we all cry. So That that is the was the moment. moment, you know. And And we were on the topic like about the society, and they yeah. still speak that उनको ये लगता है मेरा फर्जी कॉलेज है, they don't know what is MIPT. वो लोग मुझे बोलते थे कि तुम स्कॉलरशिप पे नहीं जा रहे हो, तुम मतलब MIPT में अगर तुम पेड भी हो, तुम पे भी करके जा रहे हो, तो इट इज अ ह्यूज थिंग, बिकॉज स्कॉलरशिप एक या दो बंदे को मिलती है जो डिजर्व करते हैं, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं या जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, वो सबको नहीं देते हैं. उन लोगों का ये था कि व्हाई आर यू नॉट ज्वाइनिंग आईआईटी. भैया आईआईटी का 200 पे है रैंकिंग, तुम एमआईपीटी को कहाँ कंपेयर कर रहे हो. एंड आउटसाइड एक्सपीरियंस इज ऑलवेज चेरिश योर लाइफ, बिकॉज इट विल एक्सप्लोर यू. एक होता है ना कुएं का मेंढक, कुएं में मेंढक होता है, एंड दे कांट थिंक अबाउट द आईआईटी. मेरे रिलेटिव्स मुझे टोंट मारते थे कि एमआईटी में तुम पैसे देकर पढ़ रही हो तो दे विल पास यू, they will not fail you. But I saw the people like since 2 years I have been studying there. वो लोग फेल कर देते हैं. They want the cream student only. चाहे तुम स्कॉलरशिप पे हो, चाहे तुम पेड हो, it doesn't matter to them. They only want a good student. एंड मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो वहां से छोड़कर वापस अपने घर चले गए जस्ट बिकॉज दे फेल्ड एग्जाम्स ट्वाइस. हमारे यहाँ पे तो बैक देने का सिस्टम है 4-5 बार, वहां पे सिर्फ 2 बार चांस मिलता है. इफ यू फेल दैट यू लूज द एंटायर डिग्री. So they are very hard about their studies, and you need to make good efforts. And I think when I joined Banasthali, that was the moment जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया दिल से. उससे पहले मैंने कभी पढ़ाई नहीं करी ढंग से. As you said ना कि बाहर की जो इंस्टीट्यूट है, दे आर स्ट्रिक्ट अबाउट यू नो एवरीथिंग अबाउट एग्जाम्स. और हमारे यहाँ पे तो चांसेस होती हैं कि चलो बैक लग गया, रीअपियर लग गया, तो चलो आप यू हैव योर चांसेस कि यू टेक योर टाइम, 1 साल और ले लो, बट कर लो, क्लियर कर लो सब्जेक्ट्स और आपको डिग्री मिल जाएगी. क्योंकि लेकिन बाहर वही सीन है कि आपको, जैसे आपने कहा कि यू हैव ओनली 2 चांसेस, यू हैव टू स्टडी देयर, देयर इज नो अदर ऑप्शन, देयर इज नो अदर डोर यू कैन गो थ्रू, देयर इज ओनली वन चांस. और एल्स आप फिर वही आप अपने घर आ जाओ. सब वहीं से जितनी जर्नी आपने की, जितनी मेहनत की, दैट इज ऑल गॉन इन अ ब्लिप. और आपने इतनी मेहनत की. और आई थिंक जो भी देख रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है, छोटी सी जो ऑडियंस है हमारी देख रही है, आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट, यू नो, प्रोसीजर कैसे होता है कि एक आम सा बंदा जो ड्रीम करता है, यू नो, इंडिया में मैं सोचता हूँ कि नॉट एवरीवन इज दैट प्रिविलेज्ड कि वो यू नो, लोग तो इंडिया में इंस्टीट्यूट के लिए भी लाइक होता है. मेरे केस में भी हुआ ये चीज कि कितना भी हो, कि पेरेंट्स का कितना भी हो कि चलो यार अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज देंगे, पर एट द एंड वो 1-2 मिनट के लिए देखते हैं कि फीस कितनी है. जब इंडिया में इतना स्ट्रगल होता है, बाहर में you know, if someone wants to go, is if any student is watching this or any parents is watching this and he wants to send, या थोड़ा सा यू नो कन्विंस करना है, तो आपने कैसे कन्विंस किया था? माय फर्स्ट क्वेश्चन. अपने पेरेंट्स को या सोसाइटी नहीं पूछूंगा, अपने पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस किया था, एंड हाउ इज द प्रोसेस? Actually, the moment when you need to fight from your own parents. सोसाइटी से लड़ना इतना मुश्किल नहीं है. You don't give a shit about them. You don't give a damn thing. But when it comes to your parent, they matter.
Hmm. So I have told you that King's College of London का जब मेरे पास आया था तो मेरी मॉम ने साइन कर दी थी, मेरे पापा ने साइन नहीं करे थे, बट फिर भी पैसे तो मुझे पापा से ही लेने थे ना। एट दैट टाइम मेरा भाई भी पढ़ रहा था, माय ब्रदर इज वाज डूइंग CA CS and ICWM. Now he has the entire degree and working with a good MNC. बट एट दैट मोमेंट तब हमारे पास पैसे नहीं थे, वो भी पढ़ रहा था तो, एंड मेरे बीटेक से कोई रिजल्ट था नहीं लोगों के पास, क्योंकि उनको ये लगता था कि उन्होंने मेरे बीटेक में भी पैसे वेस्ट कर रहे हैं, एमटेक में भी पैसे वेस्ट कर रहे हैं। एंड सडनली बाय डूइंग द कंटेंट राइटिंग जॉब एंड आई हैव, मेरा ग्रामर और इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था, बीइंग ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट यू डोंट हैव द गुड इंग्लिश। So it was like मुझे ये अपना point पता चला, and I used to speak nothing in the class during my BTech. एंड मेरे जो फर्स्ट ईयर के टीचर थे, फैकल्टी थी, वो जब वाइवा लेने फोर्थ ईयर में आए तो उन्होंने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा, तुम इतना बोलने कैसे लग गई, क्योंकि they know me when I was entered into the classroom and he asked my name. I answered 4-5 times and he couldn't hear me when I was on the sitting. I was standing on the first row, first bench. मैं फर्स्ट बेंच पे थी, वो सामने थे, एंड उन्होंने मेरा नाम भी नहीं सुन पा रहे थे, मतलब मेरी आवाज ही नहीं निकलती थी। फिर थर्ड ईयर में व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग कोचिंग्स एंड ट्यूशंस, मेरे बेसिक डाउट्स, और एक होता था ना, मुझे सब पता था, मेरी टीचर ने मुझे बताया था, एक फैकल्टी थी कंप्यूटर साइंस में ही हमें पढ़ाती थी, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। तो उन्होंने हमें बताया था, मुझे बोला था कि तुम्हें आंसर्स आते हैं बट तुम बोल क्यों नहीं पाती हो, यू शुड स्पीक, तुम्हें एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो मैं हमेशा डरी रहती थी, क्योंकि मुझे हमेशा सप्रेस करा गया था, कभी ये बोल के कि तुम्हें कुछ नहीं आता, कभी ये बोल के तुम नहीं कर पाओगे कभी कुछ। तो इट वाज द मोमेंट, एंड मेरे कुछ ज्यादा फ्रेंड्स भी नहीं थे, क्योंकि मैं बनाना ही नहीं चाहती थी। सो इट वाज द मोमेंट व्हेन आई रियलाइज दैट मैं कहाँ मेरी फ्लॉज, स्कार्सिटी है, फ्लॉज कहाँ है। इवन मेरे लास्ट ईयर में मुझे अभी तक आज एक एक मिनट याद है, बिकॉज दे मेड मी हु आई एम राइट नाउ। बीटेक के फोर्थ ईयर में आपके एक इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। एट दैट मोमेंट मैं जब स्टेज पे गई, जनवरी का ठंड का महीना था, एंड मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी स्वेट में हो गई थी, एंड आई कुडंट स्पीक इवन माय नेम इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एंड आई जस्ट रेन ऑफ फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, एंड आई आस्क्ड, सर आपको जितने नंबर देने दे दो, मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे रही हूँ। आई वाज द stage phobic. I am the camera phobic. But by the time I improved myself, मुझे पता चला मेरी कहाँ कमियां हैं। I joined during my internship. I joined school where I used to teach English grammar from 6th to 12th, and जहाँ पे मेरा grammar improve हुआ, and फिर मैंने अपनी poetry को start करने में एक novel बनाई। As I told you that heartbreak always gives you a good chance to explore yourself. Then I wrote my first novel, which is about the recovery of your thoughts and pain, rehabilitation. The rehabilitation was my first novel. So it has the 6 points like trust, love, broken marriages, friendship even. ये सब चीजें तुम्हें अंदर तक तोड़ देती है। अगर तुम्हारे कोई फ्रेंड्स भी होते हैं and they are not supporting you by the time you need them most, because parents are working होते हैं, you don't find connect, like nowadays people don't find connected to their parents much. They have their mobile and they have their internet connection, and they don't give a thought about anyone else. They don't need anyone else. So that is the moment I realized that you need, I feel writing is the most pain relieving thing. एंड मेरा ग्रामर अच्छा नहीं था, तो मैंने अपना ग्रामर इम्प्रूव किया, मैंने नोट्स बनाए ग्रामर के, लाइक इवन इन माय मास्टर्स आई मेड द नोट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर so that I can overcome my drawbacks. I don't want to be fooled by me. So I improved myself, and then during my PhD, it was like now I can speak a lot. I can't even stop myself. Yeah.
And this podcast is a live example of how you have improved. गलतियां यार सब में होती है, ये मैं सोचता हूँ, ठीक है. Whatever the reason may be, you have improved and you have improved a lot. One good thing that I would like to point out और हमारे audience को ये बताना चाहूंगा कि you said that when you're doing masters you are making notes of English grammar. For some people this may be the thing you were अभी notes बनाना यार क्या. You shouldn't be frightened by the things you love doing. Okay, that may be anything. अगर आपको चाहिए कि आपको अपने ग्रामर या कुछ भी इंप्रूव करनी है और आपको लगता है कि बाय मेकिंग नोट्स और बाय मेकिंग एनीथिंग आई कुड इंप्रूव, यू शुडंट बी थिंकिंग अबाउट द सोसाइटी कि यार ये लोग क्या कहेंगे. ऐसी बिल्कुल थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूँ, ठीक है. एंड यू हैव रिटन अ लॉट, यू हैव एडिटेड माय वर्क, सो आई थिंक you have improved a lot, and at this stage you have been that example कि आप 5 बंदे को बता सकते हो कि this is your mistake. And frankly I will speak one thing. I have published in many anthologies, and when you actually gave me that feedback, I don't exactly remember what you told me, but yeah, no one, no, not a single editor till now has given me that descriptive feedback, and I actually felt very happy. देखो, जब तक आप खुद काम करते रहोगे आपको लगेगा कि यू आर फ्लॉलेस, बट जब तक कोई आपको अपनी गलतियां नहीं बताता कि देखो आपकी गलती यहाँ है, यू जस्ट आई थिंक आपकी जो चेंज होता है, आपका प्रोग्रेस होता है, वही स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आप सोच ही नहीं रहे हो कि आपकी गलतियां क्या है. आपने बताया कि आपने इंग्लिश इंप्रूव किया अपने कंटेंट राइटिंग में, फिर you started finding jobs and all, going into a foreign college, and maintaining a study environment there. Okay, right? So आपने तो इंडिया में ही पढ़ा हुआ है, आपने फॉरेन में ही पढ़ा हुआ है. What according to you is the difference between education standard, living standard and everything? What is the difference basically? I think the difference is teacher. यहाँ पे हमारी क्वालिटी टीचर्स नहीं है. And equality means what actually you mean by equality? Like if I will talk about the Rajasthan Technical University, they don't have the, even they have, सब लोग मक्कारी करते हैं. अब उनके पास अच्छे टीचर भी हैं तो वो पढ़ाना नहीं चाहते. मुझे याद नहीं है कि मुझे किस टीचर ने, किस फैकल्टी ने पूरे बीटेक के टाइम पे पूरा कोर्स खत्म करा है. जस्ट 5 यूनिट्स होती थी, उनमें से उनसे 3 भी कंप्लीट नहीं होती थी. They always do the time pass in the class or something. So it is not the I won't comment on the environment of the colleges, but I think we need good faculties, क्योंकि वो लोग पास आउट होते हैं and वो ज्वाइन कर लेते बिना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के. It's good if they are doing the job, बट उनका इंटेंशन क्या होता है कि वो जॉब करते हैं बट उनको सिर्फ पैसे कमाने के लिए ज्वाइन करना होता है. साइड बाय साइड वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो हम पे फोकस नहीं कर पाते. एंड आई थिंक बैचलर और 11th-12th वाले स्टूडेंट जो टीनेजर्स होते हैं उनको बहुत हैंडल करना बहुत ट्रिकी टास्क है. बहुत सेंसिटिवली वी नीड टू हैंडल देम, क्योंकि अगर हम उनको, क्योंकि वो उनका एज होता है, यंग एज होता है, एंड वो उसमें बिगड़ जाते हैं और वो उसमें सुधर जाते हैं. तो इट्स अप टू यू हाउ यू आर गेटिंग इन्वॉल्व. इवन मेरा हमेशा से ऐसा ही था कि मैं बहुत फ्रेंडली होकर बच्चों को पढ़ाती हूँ, क्योंकि जब तक तुम बच्चों के दोस्त नहीं बनोगे तब तक तुम बच्चों को नहीं समझा पाओगे, वो पढ़ ही नहीं पाएंगे. तो and in India, being in India, to do friendship with your students and to be very frank with your students is a crime. You will lose your job. So it's like you have to, in India, you have to maintain one space, one line, and in outside India, you are free to discuss anything. Because बच्चे क्या होते हैं ना, वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं कि उनको कहाँ जाना है. उनको नहीं पता होता है कि वो क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. दे नीड सम मेंटोर. जैसे मुझे अपने भी मास्टर्स के इंटर्नशिप में मिला, बट मुझे मेरे बैचलर टाइम पे नहीं मिला. सब मुझे बोलते थे यू कैन डू बेटर, बट नो वन एवर गाइड मी, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं था. तो आई थिंक नॉलेज ऑफ टीचर इज इम्पोर्टेंट.
एंड और हमें हमारे स्टूडेंट्स को हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, क्योंकि जब कॉलेज के अंदर बच्चे माँ बाप से दूर होते हैं, वो हॉस्टल में रहते हैं, उनको नहीं पता होता वो सही और गलत क्या, जब तक तुम उनसे फ्रेंड नहीं बनोगे, तुम उनकी ट्रस्ट इश्यूज नहीं समझोगे, तो तुम नहीं समझ पाओगे कि तुम्हें उनको क्या एडवाइस देनी है। एंड वो अपने दोस्तों से पूछेंगे जो उनकी ही जितनी नॉलेज लेकर बैठे हैं, एंड वो तुम्हें गलत एडवाइस दे देंगे, एंड तुम उस गलत एडवाइस में पढ़कर अपना पूरा करियर खराब कर दोगे। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपको अच्छा फ्रेंड मिल गया देन यू आर लकी, बट अगर तुम्हें अच्छा फ्रेंड नहीं मिला देन तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। इट इज लाइक यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे पास एट द एंड तुम्हारे अलावा कोई नहीं होता है। एंड आउटसाइड इंडिया आई फाउंड वन गुड थिंग ऑल्सो, दैट वहाँ पे एक जैसे अगर आपका ये लाइन है कि आप अपने स्टूडेंट से फ्रेंकली बात नहीं कर सकते हो, यू कांट बी फ्रेंड with them. Even I was a very hard working student, teacher, and मैंने अपनी फोर्थ like यहाँ पे फर्जीवाड़ा भी बहुत चलता है। 4 महीने का मेरा एक सेमेस्टर होता है, उसमें मैंने 118 आवर्स की क्लासेस ली थी। यूजुअली मुझे सिर्फ 40 आवर्स की क्लासेस लेनी थी, एंड मैंने उनको रिवीजन करवाया। मेरे पेपर में बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए, बट उन लोगों ने ये नहीं देखा कि मैंने कितना हार्ड वर्क किया बच्चों के साथ। उन्होंने ये नहीं देखा कि मैंने कितना टाइम दिया। लाइक आई डिडंट आस्क मनी फॉर द फ्री, आई गेव माई टाइम। मैं एक दिन के 6-7 लेक्चर अटेंड करती थी, बिकॉज आई लाइक टू स्पेंड टाइम विद स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि आप किस माइंडसेट में काम कर रहे हो, तो आप अपने आप को एक तो यंग समझते हो, एंड प्लस आपको एक भी स्टूडेंट, क्योंकि मेरी इवन आई स्टार्टेड दिस एंथोलॉजी फॉर दैट ऑल्सो। बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो एकदम डिप्रेस फील करते थे, जो सिर्फ रोते रहते थे, एंड दे डिडंट हैव एनीवन टू टॉक टू, एंड आई हैव हर्ड सुसाइड थिंकिंग ऑफ देयर माइंडसेट आल्सो। सो अगर मैं एक भी जान बचा पाई तो इट वाज अ गुड थिंग फॉर मी, दैट मैं अपने आप के लिए थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू हियर देम आउट। सो that was a legacy, and यहाँ पे हमारे पास psychiatrist नहीं है, but outside the India you will have one psychiatrist account, and you can go there and you can visit there. You don't need to take anyone's advice or consultation. तुम अपने आप जाकर वहाँ पे visit कर सकते हो, and that's for free, because everyone needs to hear out. सबके पास टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ सबका सुने। सही बात है ना, मतलब आपने कहा ना, एक तो चीज है कि मेंटल हेल्थ, यू नो, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। आज के डेट पे मैं ये सोचता हूँ कि जहाँ मेंटल हेल्थ एक कॉमन वर्ड हो गया, बट द ट्रू मीनिंग लोग नहीं समझते, और इट इज जस्ट लाइक कि यार हाँ, यू नो, एज पीपल से अबाउट फेमिनिज्म कि हाँ यार फेमिनिज्म वर्ड है, मजा आता है उसको बोलने में, बट the true implication of what that word is, how much weight that word carries, no one actually understand what that is. वैसे ही लगता है, like अभी when I am going to my 3rd year, we have a choice कि हमें कोई सब्जेक्ट चूज करना है कंप्यूटर साइंस में एज अ माइनर, ओके। बट एक्चुअली है कि ना हमने आज तक डेटा साइंस पढ़ी है, ना आज तक हमने मशीन लर्निंग पढ़ी है, बट वी हैव टू चूज what subject we want to study for the next 2 hours, or we don't have any guidance for that. as आपने कहा ना कि कुछ है नहीं हमसे, हम किससे बात करें कि यार क्या ले बताओ। हम तो अपने दोस्तों से पूछते हैं कि तुम क्या ले रहे हो बताओ, हम थोड़ा सा रिसर्च करके जितना हमारे उस होता है। तो या फॉरेन में आपको वो एक बेनिफिट रहता है कि आप कुछ भी चाहिए, यू हैव दैट पर्सन अलॉटेड कि वो आपको हेल्प करे, वो आपको फिगर आउट करने में हेल्प करे कि you know, you are good in maths, good in this subject, you should do this, you have this career options, you have this course options which you can take. India में ये एक चीज, I wasn't talking about the counselor, actually I was talking about the psychiatrist. Yeah, जो because most of the time you are overwhelmed with your emotions and you can't able to take right decisions for yourself. So you need to go to them, they will listen you out and they will help you that what you need to do and what you don't need to do. So I'm talking about the mental health issue, the concern for their mental health. India has counselors. India has counselors, but what I think, you know, कि आज जैसे कि आपने कहा कि टीचर्स उतने फ्रेंडली नहीं है, तो मैं ये सोचता हूँ कि देखो
जहां बात आती है पर्टिकुलर काउंसलर की, वो हर कॉलेजेस में नहीं होते हैं यूजुअली इतना, मैंने जहां ये किया है, दैट फॉरेन हैज अकॉर्डिंग एज आई नो, यू नो, यू मस्ट बी नोइंग बेटर, बट ये होता है। और वहां पे जब आप टीचर्स को भी पूछोगे, टीचर्स कैन एक्सप्लेन, दे विल गिव यू टाइम कि यू नो आई विल टेक 1 hour लेक्चर एंड आई विल explain you that these are the things, you have this choices, you can take anything that one। वहां पे हम स्ट्रगल करते हैं कि यार क्या ले वहां पे, यू नो व्हाट सब्जेक्ट्स, यू नो, क्योंकि लाइफ में मैंने इतने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं कि मैं अभी कुछ भी स्टेप लेने से पहले मैं सोचता हूँ कि यार व्हाट शुड बी माय पाथ व्हिच आई शुड टेक, यू नो। मूविंग ऑन, आपने बहुत सारी बातों पे डिस्कस किया, वी टॉक्ड अबाउट योर एजुकेशन, राइट? Yeah, but the next thing that I want to talk about is your life, your social life, how that is, you know, and आपने like obviously, क्योंकि आप जहाँ से बिलोंग करते हो, आपने कहा कि सोसाइटी वैसी है, तो ऑब्वियसली आपकी मेंटालिटी भी यू नो स्टार्टिंग में उतनी ओपन नहीं होगी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था, व्हाट वाज दैट मोमेंट जब आपने रियलाइज किया कि नो, देयर इज अ बिगर पिक्चर आउट देयर, जो कि हमें सुनने भी नहीं मिलता है, यू नो, देयर मस्ट बी दैट मोमेंट, एंड हाउ डिड यू एक्सपैंडेड योर ओन माइंडसेट? हाँ, मैं जब थर्ड ईयर में आई थी बैचलर के, तब मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो गई थी। एंड इन दैट फैमिली एवरीवन इज सो एम्बिशियस। मुझे लगता था यार ये कुछ बनना चाहता है, वो कुछ बनना चाहती है, एंड मैं एक बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। आई हैव मच पोटेंशियल देन दैट। फिर उसके बाद धीरे धीरे आई एज आई टोल्ड यू दैट नहीं, आई वांटेड टू प्रूव लाइक प्यार सब कुछ नहीं होता है, प्यार होता है बट बहुत कुछ होता है, बट सब कुछ नहीं होता है। एंड समवेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आजकल की जनरेशन प्यार को, मैं ये नहीं कहती हूँ आई एम द एपिटोमी ऑफ लव, बट हम लोगों के पास अनकंडीशनल लव नहीं है। वी ऑल सीक फॉर द मटेरियलिस्टिक लाइफ और लस्ट और समथिंग which is not good for us, and it will, like, obsession is also a part of it. When you get obsessed with someone and you are not able to get that, at that moment you will realize that you are just wasting your time. So मेरा mindset मेरी एक्चुअली आई थिंक ये मेरी अपब्रिंगिंग का है कि मेरी अपब्रिंगिंग मेरे मॉम डैड के अलावा बहुत सारे लोगों ने करी है। मेरी नानी, आई फाउंड हर कूल, वेरी कूल, लाइक वो अभी 85 इयर्स की है, एंड आई कैन शेयर हर एवरीथिंग अबाउट माय बॉयफ्रेंड्स, अबाउट माय फ्रेंड्स, अबाउट माय फ्रेंड्स रिलेशनशिप, एवरीथिंग। लाइक वो सब कुछ सुनती है, समझती है। एंड मैंने शी बोर्न एट द टाइम जब वर्ल्ड वॉर अपना सेकंड चल रहा था, पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा, तब वो 10 साल की थी, एंड शी हैज रिमेम्बर्ड एवरीथिंग। सो मेरा उनसे बहुत बनता है, एंड उन्होंने इतना चेंज देखा है। तब वो हरियाणा में रहती थी, मेरे नाना जी का बॉर्न लाहौर का है, वो लाहौर बॉर्न है। फिर पार्टीशन के बाद वो इधर शिफ्ट हो गए थे। तो इट वाज लाइक उन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है, लाइक बीइंग हम्बल, बीइंग काइंड एंड बीइंग ऑनेस्ट। लाइक हम लोगों को जब पैसे नहीं होते थे तब होता था ना, कई बार आपके थॉट्स आते थे कि इसका पैसे चुरा लेते हैं। बट एक बार मुझे याद है कि 7th में थी मैं, मेरे दादाजी के चिल्लड़ रखे हुए थे 5-7 रुपए, तब उतने भी नहीं मिलते थे, तो मैंने उठा लिए। फिर बाद में मैंने सोचा यार भगवान पाप देगा, बहुत पाप देगा, मैं वापस वहीं रख दी और कन्फेस कर लिया दादाजी को जाकर कि दादाजी ऐसा ऐसा हुआ है, सॉरी फॉर दैट। अभी वो नहीं है, बट मेरी अपब्रिंगिंग बहुत सारे लोगों ने करी है, तो आई थिंक मेरे पास बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंसेस हैं, सब लोग कुछ बताते थे, तो आई लिसन टू देम। मेरी यंग लोगों से ज्यादा बूढ़े लोगों से बनती है, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं एंड ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि even from your friends you want same thing, understanding or acceptance. Yeah. Or sometimes they don't have it. तब तुम frustrated feel करते हो। So I always found my family stands next to me. तो मुझे कभी दोस्तों की इतनी ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं जितनी मेरी फैमिली की मुझे पड़ती थी। you know, फैमिली का मैं सोचता हूँ यार बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी लाइफ को बिगाड़ने में, क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स लिसनिंग टू यू, they understand you, they share your experience, they share their experiences as well as you share your experiences. For my case,
मेरे को अपने लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे मिले हैं जिनके साथ मैं पर्सनली बातें शेयर कर सकूं, यू नो, क्योंकि मेरी जो लेवल ऑफ क्या बोलूं थॉट प्रोसेस होती है वो काफी अलग है लोगों से, राइट। तो कहीं ना कहीं यू नो एक टिपिकल हर स्कूल कॉलेज में टिपिकल स्टूडेंट बेस चलता है कि जो यू नो पढ़ाई, डिग्री, प्लेसमेंट्स एंड ऑल दैट उस मेंटालिटी में चलता है। बट आई वांट कि यार 4 साल अभी अपने आप को रहना है इधर, तो व्हाट न्यू थिंग्स कैन आई एक्सप्लोर, और यू नो एक अलग माइंड चलता है। तो फाइंडिंग दैट पीपल हु यू कुड शेयर योर थॉट्स, जो आपको समझे, आपकी बातों को आपको गाइड कर सके, यू नो व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट। क्योंकि अब हर चीज, ये भी एक रियलिटी मैं सोचता हूँ कि हर चीज आप अपने पेरेंट्स को या एल्डर्स को शेयर नहीं कर सकते। कुछ चीजें हैं फॉर विच यू नीड फ्रेंड्स टू शेयर दैट थिंग्स। तो फाइंडिंग दैट ग्रुप ऑफ फ्रेंड इज एक्चुअली अ वेरी टफ जॉब विच आई थिंक। और एंड आई एम प्राउड कि आपको मिला ऐसे फैमिली मिली आपको ऐसी, यू नो एवरीवन हैज लोस आई थिंक, एंड यू हैव योर ओन लोस। आपको एक ऐसी सोसाइटी में आपका बर्थ हुआ जो जिसने आपको यू नो वैसे नहीं देखा जैसे आप अपने आप को दिखाना चाहते थे। बट इट्स फाइन, यू हैव फाइनली मेड अ नेम फॉर योरसेल्फ, एंड आई थिंक दैट्स एनफ फॉर दैट, यू नो। और I was the first person in my family जिसने 10th पास किया था। ओह तो आपका आपके जो भाई हैं वो आपसे छोटे हैं या बड़े हैं, राइट? छोटा है वो मुझसे 3 साल। ओह या सो सो या इट वाज, सब लोग पूरे अगेंस्ट इसलिए थे क्योंकि उन लोगों का पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। हाँ उन लोगों का ये था कि इतना पैसा पढ़ाई में लगा, इससे बड़े इसकी शादी कर दे, हाँ लाइबिलिटी वैसे खत्म हो जाएगी। हाँ हाँ हाँ। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक मैंने भी देखा हुआ ये जो आपने थॉट प्रोसेस कहा ना, हुआ है मैंने अपने, आई विल नॉट नेम देम क्योंकि यार सोसाइटी, आई वुडंट यूज दैट वर्ड ना यार, बहुत जजिंग है यार कि मैं अपने रिलेटिव्स के अगेंस्ट में बोलूंगा। बट या आई हैव फाउंड माय ओन फैमिली रिलेटिव्स, नॉट फैमिली मेंबर्स बट हाँ रिलेटिव्स, जो ऐसे सोचते हैं आप जैसे बोल रहे हो कि यार यू नो जब लड़का का आता है दे एक्चुअली थिंक कि यार इसको बीटेक कराना, फिर एमटेक कराना, फिर इसको कहीं अच्छे से प्लेस हो जाए बस। बट आई डोंट नो व्हाई, बट गर्ल्स के सेंस में वो फीलिंग क्यों नहीं आती है उनको कि यार इसको हम पढ़ा लेंगे। Actually, दे फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग दे प्लान अकॉर्डिंगली कि यार इसको आर्ट्स भेजेंगे, इसको कोई ऐसी स्टडी फील्ड में भेजेंगे जिसमें बस इसकी कोई अच्छी सी जॉब या वो लग जाए, फिर तो यू नो मैरिज एंड ऑल वो करना जॉब ही का है। भी नहीं सोचते हैं, जॉब का या भी नहीं सोचते हैं। या इवन मुझे याद है, मैं 3rd ईयर 4th ईयर में थी, मेरे पापा को पता चला आई वॉज इन रिलेशनशिप। मेरे हम्म भैया ने बोला आप इसकी पढ़ाई छुड़वा, एक कजिन थे, उन्होंने बोला आप इसकी पढ़ाई छुड़वा कर वापस लेकर क्यों नहीं आ जाते घर पे। पापा का वर्ड्स थे कि ये बच्ची, मैं थोड़ी ना बच्चा हूँ। तो हम्म ही एक्सेप्टेड माई रिलेशनशिप, हम्म एंड एंड उन्होंने मेरी पढ़ाई को स्टॉप नहीं करा। वरना हमारे यहाँ पे लव मैरिजेस की, लव टास्क की, लव अफेयर्स के लिए भी बहुत बुरे बुरे चीजें हुई थी। एंड इट वाज लाइक द माहौल ही ऐसा था कि गांव के लोग हैं, एंड दे आर नॉट दैट मच ओपन माइंडेड, एंड स्टिल माय फादर स्टूड बिहाइंड मी। सो दैट वाज द सपोर्ट। इवन हमेशा यही था सिंस आई वाज 21, फ्रॉम दैट डे आई वॉज लाइक, सब लोगों का ये था कि अंशिता की शादी करवा दो, शादी करवा दो। बीटेक खत्म हुई, शादी। मैं आई वॉज 22 एंड मैं अपने आप को ढूंढ रही थी और मैं नहीं करना चाहती थी शादी। तो उस टाइम क्योंकि ब्रेकअप हुआ था, तो होता है ना कि आपको नहीं होता, समझ आता है, तब समझ में आया है यार, जितना वो लोग मुझे प्रोवोक करते थे, अब पोक करते थे कि शादी करो शादी करो, उतना मैं शादी से दूर भागती रहती थी, एंड उतना ही मैं अपने आप को ढूंढती रहती थी। And by the end of the day, I found myself and I realized that where I belong and where I don't belong. And you were asking about the social life of mine. देखो मेरा जॉइंट फैमिली है, तो इट्स लाइक जो हमारे घर में 1 महीने में 3 फंक्शंस हो जाते अच्छा हैं। एंड आई कुडंट, पहले मैंने सोचा कि उनको अवॉइड करने के लिए डोंट गो देयर, अवॉइड देम। बट फिर मैंने सोचा कि यार ये तो मेरा ही फैमिली, मेरे ही रिलेटिव्स, आई नीड टू मेक देम अंडरस्टैंड। फिर जैसे मैंने बोला कि मैं सबके सामने उल्टे जवाब नहीं देती थी, देन आई स्टार्टेड स्पीकिंग एंड आई स्टार्टेड मेकिंग देम अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज उनको है ना समझाने वाला कोई चाहिए।
Yeah. कि उन्होंने ये सब चीज देखी नहीं होती है ना, तो Hmm. उनको समझ में नहीं आता है कि ऐसा भी Yeah. हो सकता है। Hmm. दे आर न्यू टू दैम एंड वो सोचते Hmm. हैं कि नहीं अभी 2-4 साल की बात है, ये अपने आप मान जाएगी। एंड Hmm. इट्स लाइक आई एम 30 नाउ Hmm. and I'm still not married. So Yeah. I think since last 9 years, I Hmm. was hearing the same thing. Even my younger brother is going to get married, and I'm Hmm. not getting married. So Yeah. I can feel that उनका अभी भी यही ओपिनियन है कि इसके छोटे भाई की शादी होगी ना, उसके बाद ये शादी के लिए बोलेगी। बट आई एम Hmm. नॉट इन द जोन, वो ये समझ नहीं Yeah. पा रहे, वो ये Hmm. नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने ऐसा देखा ही नहीं है। Hmm. उनको Hmm. यही लगता है कि जो लड़की शादी नहीं करती है या तो वो आवारा होती है। बट Yeah. मेरी फैमिली को इतना ट्रस्ट है कि मैं आवारा नहीं हूँ। Hmm. Hmm. तो उनका ये होता है सेकंड कि Hmm. वो बाद में जाकर बुढ़ापे में पछताएगी। बट आई एम वेरी क्लियर, if Hmm. this then that, if Yeah. this is not happening then Yeah. I will go for option। Hmm. I Hmm. had I had made 3-4 choices for my life, that अगर ये नहीं हुआ तो ये कर लूंगी, ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगी। And Yeah. for that I don't I wanted to live now। You have So plan I, B for everything. That's great. yes, not Yeah. planned but we Yeah. need to handle। क्योंकि क्या Hmm. होता है, जैसे अभी छिछोरे मूवी में बताया था कि हम Hmm. लोगों को सक्सेस नहीं हो पाना है, वो सब सिखाते हैं, बट Hmm. उसको हैंडल करना है वो नहीं सिखाते। Yeah. Yeah. We need to learn our Hmm. failures, Hmm. because what I think failures makes us more achievable। Hmm. वो हमारे एक होता है ना, एक ईगो हर्ट हो जाता है आपका कहीं ना कहीं जाकर, then you will hit it more and more and more, just like a Yeah. diamond to shine, Yeah. until Yeah. unless you will not shine। So Yeah. it's Yeah. like Yeah. the same thing। सही बात है ना। लोग काफी लोगों को ना, लाइक व्हेन आई राइट कोट्स, व्हेन आई पुट देम ऑनलाइन ना, मेनी पीपल से दैट यार ये ना बस किताबों में अच्छी लगती है चीजें, बट देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सम थिंग्स व्हिच जो आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी, यू नो। देखो अभी ऐसा होगा कि आपके साथ काफी सारी चीजें होंगी जो अगर आप मेरे साथ शेयर करोगे तो हो सकता है मैं ना समझूं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस लेवल मेरे से कहीं ज्यादा है, एंड आई एक्सेप्ट दैट एंड आई एड्रेस दैट। दैट इज द थिंग। तो समझो कि सबका लाइफ में ना अलग अलग एक्सपीरियंसेस होता है, सबके लाइफ में अपना अलग अलग, यू नो, दे हैव फेस्ड डिफरेंट चैलेंजेस, दे हैव हैंडल्ड इट देयर वे, एंड आज जो लिख रहे हैं या जो वो बोल रहे हैं वो उनकी जुबानी उन्हीं की कहानी है। सो या देयर इज नो नीड कि वो आपसे या आपके सोसाइटी से एक इक्वेट हो कि हाँ यार, जैसे ऐसा होता है ना, तो एक लड़की है तो इसकी इतनी एज में शादी हो जानी चाहिए, इतने में तो बच्चे हो ही जाने चाहिए, इतने में वो हो जानी चाहिए। बट यू नो यू आर अ पर्सन, क्योंकि मेरे को भी ना काफी ऐसे डिफिकल्ट होता है चीजों को समझाने के लिए, इवन पेरेंट्स को या किसी को भी ना समझाने में टफ होता है कि यार चीजें ऐसा वर्क नहीं करते जैसे आप सोचते हो। लाइक आई एक्सेप्ट, क्योंकि देखो जनरेशन गैप है, एंड वी नीड टू एड्रेस दैट कि जनरेशन गैप है, क्योंकि उन्होंने, जैसे आपने कहा कि उनके टाइम में जो रिलेशनशिप एक टॉपिक चीज ऐसी है ना, उन्होंने कभी देखी नहीं है, एंड उनके टाइम में जो होता था दे वर लाइक फायर्ड फ्रॉम द सोसाइटी। तो उनको पता है कि यार अगर कोई ऐसा हो गया तो इनको ऐसे कर सकता है, तो ऑब्वियसली दे वांट योर बैक कि यार मेरे लड़के के साथ या मेरी लड़की के साथ कुछ ऐसा ना हो जैसे मैंने देखा हुआ है, लाइक मैंने जो विलेनस चीजें देखी हुई है वो मेरे फैमिली के साथ कभी ना हो। वो एक मैं सोचता हूँ काफी यू नो इम्पोर्टेंट चीज है, इसीलिए वो थोड़ा बैक करते हैं, सेफ रखते हैं हमको। आई थिंक इस मामले में मेरी मॉम डैड एंड मेरा भाई, हम्म। दे आर जस्ट फैबुलस। लाइक मैं मेरे भाई के साथ कुछ भी शेयर कर सकती हूँ। एंड मेरा भाई टिपिकल भाइयों की तरह नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द भाई अपने बहन को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो भी मुझे प्रोटेक्ट करके रखता है, बट वो मुझे चीजें सिखाकर फिर प्रोटेक्ट करता है। वो मुझे बांधता नहीं है, वो मुझे फ्रीडम अलाउ करता है। एंड मेरे पापा के साथ भी यही सीन है कि मेरे पापा के लिए यही काफी है कि बच्चे बता तो रहे हैं, वरना बच्चे तो बिना बताए बहुत कुछ कर लेते हैं। राइट राइट एटलीस्ट हमारे बच्चे हमसे आकर झूठ तो नहीं बोलते, या फिर वो हमसे कुछ छुपाते तो नहीं है। इवन सेम। for example, if I am living with someone else, then he knows that, उनको पता होगा। if I am having an affair, उनको पता होगा। if I am going with my friends out, then उनको पता होगा। if I am having with something, whatever I am doing, कुछ भी, वो उनको पता होगा। तो क्योंकि हम लोगों की फैमिली में ये क्लियर है कि बाहर से मम्मी पापा को पता चलता है तो उनको हर्ट होता है, बट अगर अपने ही बच्चे बताते हैं, भले उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, डाइजेस्ट नहीं होता है, बट दे डाइजेस्ट दैट, तो वो अच्छी चीज है।
कि दोनों तरफ से होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज दिस इज नॉट वन हैंड थिंग। अगर तुम एक बार बताओगे थप्पड़ खाली पापा के हाथ से, दोबारा जाकर बताने की हिम्मत नहीं होगी। अगर तुमने एक बार बताया एंड उन्होंने तुमको समझा एंड तुमको समझाया कि दिस Yeah, इज yeah. नॉट गुड थिंग, Hmm. दिस इज राइट, दिस इज बैड, तो Hmm. तुम कहीं Hmm. भटकोगे नहीं। Yeah, एंड yeah. एज आई टोल्ड यू दैट मेरे पापा ने मेरे लिए एक घर बेचा था, Hmm. तो दैट थिंग, एंड उन्होंने मेरे लिए स्टैंड लिया था जब मेरे एक कजिन ने बोला था कि इसकी पढ़ाई छुड़वा कर इसको लेकर आ जाओ, इसका अफेयर चल रहा है, Hmm. इसकी शादी की बात करो। आई वॉज इन थर्ड ईयर, Hmm. 20 years old, मेरी शादी Yeah. क्यों करनी है? Huh. मतलब पापा ने वो सब चीजें समझी। Hmm. he goes against me, like against the odd, not against me. He Yes. stand beside me. जैसे अभी भी सारी सोसाइटी उनको बोलती है कि तुमने अपनी Hmm. बेटी को सर पे चढ़ा रखा है, तुम उसकी शादी नहीं करवाते हो। दे पोक हिम अलॉट। अभी शादी में, किसी भी शादी में मिलते हैं तो वो बोलते रहते हैं, तो पाप अभी सबका यूज टू हो गया है कि यार 8-2 साल से सब लोग बोल बोल के थक गए, एंड सोसाइटी विल नॉट स्पीक। And yes, and the last time I have received award, so I think उसके बाद लोग बाग और आने लग गए कि यार तुम्हारी बेटी 30 साल की हो रही है, तुम्हें, मेरे माँ बाप को चिंता नहीं है भाई, तुम्हें क्यों चिंता तुम्हें हो क्यों रही चिंता है? है? सही बात है. मतलब कभी कभी तो मेरे मन में ये आता है कि मैं उनको, क्योंकि मैं एक बहुत जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बहुत हम लोग उल्टे जवाब बिल्कुल नहीं दे सकते, वी हैव टू बी हम्बल एंड पोलाइट। तो मुझे कभी कभी मन में आता है कि यार क्यों नहीं बोल दूं मैं उनको कि आपके घर का तो खाना नहीं खा रही ना, आपको आकर तो नहीं बोल रही मुझे रोटी खिलाओ या सब्जी खिलाओ, मैं Hmm. मेरे पापा को तंग कर रही हूँ, कुछ भी Hmm. कर रही हूँ, मेरे पापा मम्मी के साथ हूँ ना। आई एम नॉट लिविंग विद यू गाइज, देन हु Yeah. आर यू टू जज मी फॉर दैट? Yeah. 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 तो आई ये थिंक लोगों का काम ही यही होता है। होता है. अरे वही ना कि सोसाइटी की अपब्रिंगिंग ही ऐसी है कि उनके टाइम में उनको भी बोला जाता था ये कि यार तुम शादी क्यों नहीं करते, और उन्होंने कर लिया तो उनको भी लगता है कि हम बोलेंगे और ये कर लेगी. तो ये जो मेंटेलिटी है दैट नीड्स टू स्टॉप एक्चुअली. और यू हैव एक्चुअली ब्रोकन दैट बैरियर एंड एवरीवन वुड बी प्राउड. और जैसे कि कहा कि आपने आपने अभी अवार्ड्स जीतना शुरू शुरू किया है, और आपने यू हैव गॉट द रिकग्निशन यू एक्चुअली वांटेड, यू हैव स्ट्राइव्ड फॉर. एंड कहीं ना कहीं एट द एंड ना उनको समझ में आएगा वो चीजें, वही होता है. क्योंकि अभी भी एट दिस स्टेज ऐसा होता है ना कि मेरे पेरेंट्स भी थोड़ा चीजों को नहीं समझता है, तो मुझे समझाना पड़ता है कि लाइक उनके लिए फेम क्या है, कि बच्चा जब तक पेपर में नहीं आ जाता या टीवी में नहीं आता, दैट इज द फेम दे हैव सीन ऑल देयर लाइफ. सो दैट इज व्हाट दे स्ट्राइव फॉर. बट when I get featured in anything, or डिजिटल, आजकल तो डिजिटल होता है कि आप इसमें फीचर हो गए, उसमें फीचर हो गया, when I show them they are like okay. तो आई थिंक कि देखो ये उस लेवल का चीजें हैं, दिस हैज दैट क्रेडिबिलिटी जो आप देख रहे हो. क्योंकि ऐसे नहीं होता है कि हमेशा वो प्रिंट फॉर्म या टीवी में आप देखोगे तो खुश होगे. बट या एज children we need to accept the differences, the thought process, what how it differs from our parents. और समझाना जरूरी है यार, बात करना जरूरी है पेरेंट्स से. क्योंकि देखो दे आर द पीपल जो आपके हैं, आपको सोसाइटी को समझाने की जरूरत नहीं है, आपको उनसे वैलिडेशन सीख नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि जब तक आपके पेरेंट्स आपके साथ है, देर आपके पास सब है. व्हेन आई से आपके पास लाइक कुछ भी चाहिए कि पापा मुझे ये करना है, he will be the one who will be paying you, who will be paying for you anything for that one. क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि लाइक आई वांट टू डू एमबीए, राइट, क्योंकि मुझे पता है कि एमबीए में आज की डेट में फीस बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो आई मुझे भी कंसर्न है कि यार फैमिली का सिचुएशन उतना सही नहीं है. तो आई गो एंड टेल कि पापा मैं क्या करूंगा, बीटेक के बाद 1 साल जॉब कर लूंगा, फिर आई विल अर्न एंड देन आई विल एमबीए. सो ही सेड लाइक तुझे क्यों चिंता है, मेरी जॉब है अभी तक, आई विल मैनेज एनी हाउ. Why you are stressing out, you just have to study, you crack gate, you crack cat, and then you study. तुम्हें पढ़ाई करनी है, अभी तुम्हारी उम्र उतनी नहीं हुई, you don't have to act that mature कि यार मैं कमा के पढ़ लूंगा. आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, you are doing part time, that's a different thing, but yeah, you don't have to stress for that. And that is the beauty of the parent child relationship, which is I think unique, quite unique. But I think I want to correct you. This is Yeah, for only the male figure, not for yeah, female figure. yeah. अगर एक लड़की बोले उसको आगे पढ़ना है तो शादी के बाद पढ़ लेना. लाइक मैं 9 साल से यही सुन रही हूँ, तुझे जितना पढ़ना है शादी के बाद पढ़ लेना. इवन Yeah. हम लोग लाइक
in our religion, people are like, तुम आ जाओ, हम तुम्हें पढ़ा देंगे. अरे यार, मेरे माँ बाप मुझे मेरी स्टडी सपोर्ट कर सकते हैं. Why I need to get married to support my funding studies? Like, क्यों मैं अपनी फंडिंग के लिए तुमसे शादी करूं? कि मैं अपनी PhD के लिए तुम, मतलब there was a time when people came with their rishtas, even कि तुम चले जाओ. I got the option कि तुम्हारे मेरा एक मुझे 2-3 लोगों का आया था ऑफर, and it was like outside India, and उन्होंने, मेरे घर वाले यही थे कि तू क्यों इतना, उनको होता है ना लड़की स्ट्रगल क्यों कर रही है, अपने आप करने तो. लड़की is not made for struggle, they are chewing types. And it was not me. मुझे किसी की कमाई के ऊपर, like, मुझे नहीं जाना था कि यार एक वेल सेटल्ड बंदा है US में या UK में, उससे शादी कर लो, वो आपकी फीस पे करेगा एंड तुम्हारी लाइफ बहुत इजीली हो जाएगी. वो तो उसका हुआ ना, वो मेरा थोड़ी ना हुआ. अभी जो मैं अर्न करूंगी, अभी मैं जो कुछ भी करूंगी, इट इज, मैं अपने पेरेंट्स को भी दे सकती हूँ. मगर वो मुझे पढ़ाता और वो मुझे सपोर्ट करता, तो मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होती कि वो मुझे बोलेगा कि आप अपने पेरेंट्स को दे सको. तो मतलब आई वांट टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट सिंस देन. I never chose that option for me. I got that option, but I never chose it. तो लाइक थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, तो ये लड़के या जो भी उनके फैमिली जो भी आते थे, दे यूज्ड टू ऑफर यू कि यार यू नो लेट्स गेट मैरिड टू आवर फैमिली एंड योर डॉटर विल हैव एनीथिंग यू वांट, और कैसे, हाउ डज दिस वर्क एक्चुअली? नहीं, frankly telling you, मैंने सिर्फ एक ही रिश्ता देखा था, क्योंकि मुझे यही था कि I was exploring myself. मुझे नहीं पता था कि मैं इतना freaked out हो जाऊंगी. तो फिर मतलब होता है ना, म्यूचुअल फ्रेंड्स हुए, और रिश्ते तो लड़की हो तो आपको मिलते ही रहेंगे. लड़कों के लिए आजकल लड़की ढूंढना दिक्कत होती है. तो इट्स लाइक फॉर बीइंग अ गर्ल एंड वो भी एजुकेटेड, तो आपको आते रहते हैं कॉल्स. तो मेरे पापा के पास कॉल्स आते रहते थे. तो एक बंदे से मैं मिली थी, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी. किसी के पास जाओ, क्यों मिलना है 5 मिनट के लिए? वो 5 मिनट के लिए आप मिलकर पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते. आई हैव बीन विद द पीपल फॉर 5 years ऑफ रिलेशनशिप एंड आई लॉस्ट देम. तो मैं 5 मिनट के बंदे को क्या बोलूंगी, तुमने कितना जान लिया है. सो आई वाज नॉट इन दैट माइंडसेट. एंड मेरे एक्सपीरियंसेस ही कुछ ऐसे थे लाइफ में, और इवन मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी उन लोगों का इतना स्ट्रगल रहा था. तो मुझे लगता था कि नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए. दिस इज समथिंग आई डोंट वांट. मुझे जो भी चाहिए वो मुझे मेरे बलबूते पे चाहिए, किसी और के बलबूते के ऊपर नहीं. उनको सीढ़ी बनाकर आई डोंट वांट टू यूज दैट. या ब्यूटीफुल. लाइक कहा हाँ, ये ना कि जैसे आपने कहा कि आपका मेंटालिटी उतना आपने इम्प्रूव कर लिया कि आप ये चीज सोच सकते हो. एंड दैट कोई अगर लड़की भी देख रही है ना कि आपको अपनी मेंटालिटी उतनी इंप्रूव करनी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू यू नो गेट मैरिड. इफ यू वांट, इफ दैट्स योर जोन, अगर आप उस जोन में हो कि आप यू आर ओके विद दैट, करो. बट या द यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ टू थिंक, यू नो, एंड देन डिसाइड. नॉट कि कोई बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं तो मुझे उनके उसके ऊपर आके वो करना है. और इंडिपेंडेंट ग्रोथ, जैसे आपने कहा, बहुत बढ़िया चीज है कि यू हैव टू ग्रो इंडिपेंडेंटली. और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि एक मैं ऐसा डिफरेंस सोचता हूँ कि अगर आप खुद ग्रो करोगे, आपको पता है कि यू नो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड जीरो, और आपको पता है यू नो योर वे बेसिकली. ठीक है, मतलब बेसिकली ये है कि अगर आपको माउंटेन चढ़नी है और आप चल के ट्रैक करके जा रहे हो, तो आपको रास्ता पता है कि चलो इसके बाद मुझे ये स्टेप लेना है, ये कॉर्नर जाना है, यहाँ से जाकर मैं पहुंच जाऊंगी. बट वही चीज अगर आप यू नो कोई आपको पीठ पे कैरी करके ले जाता है, तो you just enjoy the view, but आपको पता है नहीं कि रास्ता कैसा है. You don't know the ground reality, and that's financial independent. That's important, you know. हमने इतनी सारी चीजों पे बात कर ली. थोड़ा सा भी आता हूँ कि पब्लिशिंग हाउस you just started, you know. ये पब्लिशिंग हाउस का थॉट कहाँ से आया, और you know what's the motto behind that, और how are you figuring things out in this new genre? As I told you that अभी मैं बाहर हूँ, तो मुझे सब फ्रीलांसिंग ही करना होता है. एंड इट्स लाइक मेरा जो मोटिव था वो हमेशा से यही था कि मैं उन लोगों को सामने लाऊं जो अपनी स्टोरीज नहीं बता पाते हैं या वो नहीं बताना चाहते हैं. बिकॉज वाइल सफरिंग, लाइक मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती थी ट्रेन में, जनरल डिपार्टमेंट में.
जनरल बोगी में. Okay. So I met people जिनकी लाइफ स्टोरीज आर वेरी मच थ्रेटनिंग एंड इट, मैं रोने लग जाती थी ट्रेन में कि वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली फॉर द women in Rajasthan. They have the very poor status of their health and of their financial standability, or you can say that they are not independent, na emotionally, na physically, na mentally. They are bound by something. So I think it happens with the Bihar also, and Kerala only in literacy. Yeah. It has the highest literacy, and people there listen to their heart and rule that. But in Rajasthan, you can take Madhya Pradesh also. These are the areas, Uttar Pradesh, and these are the cities, states जहाँ पे लोगों को है कि नहीं करते. तो मेरा ये मोटिव था कि एंथोलॉजी स्टार्ट करने का, कि जहाँ पे लोग अपनी चीजें कन्फेस कर सकते हैं, ताकि जैसे मैंने सफर किया है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो मैं उसको लिखकर किसी और को ये बता पाऊं कि तुम भी वही हो जहां, क्योंकि बाय द एज ऑफ 30 आई हैव रियलाइज दैट कि हम लोगों का जर्नी ना सबका एक सा होता है. सभी वो टीनेज से पास होते हैं, सभी वो जॉब हंटिंग फेज में होते हैं. एंड अभी मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन लोगों से बात करती हूँ, तो वो जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आई लाफ्ड ऑन देम कि डोंट वरी, तुम्हें 5 साल बाद कुछ भी नहीं लगेगा. ये लगता है उस टाइम, एंड आई कैन टेल देम एग्जैक्ट फीलिंग्स कि वो क्या फील कर रहे होंगे आफ्टर बीटेक और आफ्टर मास्टर्स और आफ्टर डूइंग देयर ग्रेजुएशंस. आई वाज वो मुझे आकर बताते हैं, क्योंकि मैं एक्सेप्ट करती हूँ उनको विदाउट एनी जजमेंटल थॉट्स. तो दे आर फ्री टू कन्फेस देयर फीलिंग्स टू मी इन फ्रंट ऑफ मी. तो ये रहता था कि मैं चाहती थी कि वो सारी स्टोरीज जो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, अपने अंदर दबा कर रखते हैं, बट उनके अंदर हिम्मत नहीं होती किसी को बताने की. तो बाय थ्रू दिस दे कैन, अभी भी लोग नहीं बता पाते हैं. उनको लगता है ना कि यार कोई पढ़ेगा तो मेरी स्टोरी के बारे में जान जाएगा. दे डोंट हैव दैट मच डेयर टू राइट. बट उन कुछ लोगों में एक दूसरे को देखकर हिम्मत भी आती है. तो फॉर एंथोलॉजी आई हैव क्रिएटेड दैट प्लेटफॉर्म जहाँ पे सिर्फ कन्फेशनल, इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज कैन बी परफॉर्म्ड और पब्लिश्ड. एंड पहले मेरा था कि मैं एक 2-3 पब्लिशिंग हाउस के साथ पब्लिश करवाती थी, बट मुझे उनका, क्योंकि इतना पैसा अर्न होता नहीं था कि मैं उसमें लगा सकूं. जो बहुत अच्छे जैसे ब्लू रोज पब्लिकेशंस हैं, और तो मैंने मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था उनके साथ, तो आई डिडंट फाइंड दैट मच गुड विद दैम. एंड जो लोअर प्राइस पब्लिशिंग हाउस होते हैं, उनके पास मेरे को क्वालिटी नहीं मिला. तो फिर आई हैव डिसाइडेड, जब मुझे सब कुछ ही करना है, लाइक लेआउट डिजाइनिंग में करती थी, थोड़ा सा टाइम ही एक्स्ट्रा लगेगा, तो व्हाई डोंट आई क्रिएट माय ओन पब्लिशिंग हाउस, ताकि जो भी, क्योंकि आई डाउट देयर इंटेंट, देयर एडिटिंग वर्क और समथिंग. मुझे इतना नहीं पसंद आता था ना कवर डिजाइनिंग, और आई एम बीइंग चूजी एंड आई वांटेड टू डू परफेक्ट विद इट, बिकॉज ये मेरे सब लोगों के लिए ये पब्लिशिंग हाउस हो सकता है, सब लोगों के लिए ये एक एंथोलॉजी एक होता है, पैसे कमाने की जगह हो सकती है. फॉर मी दिस इज नॉट द मनी अर्निंग क्राइटेरिया. This is I am doing for the public health, public mental health, where I listen to them. Even while writing the anthologies, editing the anthologies, as you told that I edited a little things. I feel every word from the article I have received. And मुझे लगता है कि हम लोगों को उसकी पॉइंट को समझकर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि अपनी ही स्टोरी को किसी और नाम में लेकर कन्फेस कर देते हैं. दैट इज द गुड थिंग आई लाइक अबाउट इट, कि लोगों को एटलीस्ट क्रिएटिव होने का अच्छा मौका मिलता है. एंड आई लाइक दैट. और फिर मेरे पास इतना पैसा होता नहीं था कि मैं पब्लिशिंग हाउस करूं, तो फिर मैंने खुद का पब्लिशिंग हाउस खोल लिया, ताकि मैं लोगों से, मुझे अच्छा भी नहीं लगता था कि मैं लोग लिख रहे हैं, दे शुड बी पेड and I'm taking money from them. That is the bad thing I don't like about myself. But so I have created this publishing house because ताकि मैं उनसे पैसा ना लूं ज्यादा, क्योंकि एडिटिंग के लिए तो लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत गंदा लिखते हैं. तो जस्ट
ये बोल सकते हैं कि मैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए, और एक एंट्री फीस होती है, तो पीपल फील मोर फोकसिंग टुवर्ड्स दैट कि हमने पैसा दिया है तो हम लोगों का उसमें कुछ है। अगर ऑब्वियसली हम पैसे नहीं हाँ देंगे, देयर मस्ट बी एन एंट्री फी फॉर दैट। क्योंकि लोग भी ऐसा देखते हैं ना कि यार पैसा ले रहा है तो लोग थोड़ा मेंटेलिटी चेंज होती है, बट ये भी है कि जब तक आप एक स्टेक पे नहीं रखोगे ना कुछ चीज, तो यू कैंट काउंट लाइक 50 पीपल विल रजिस्टर लाइक वी आर गोइंग फॉर द एंथोलॉजी, बट एट द एंड जब आपको सबमिशन डेट आएगा आपको 50 एंट्रीज नहीं मिलेंगी जब तक वो पे नहीं करती हैं। दे विल बी लाइक हाँ उनको तो याद भी नहीं रहेगा, बट व्हेन दे पे इवन 50 और 100 रुपीज, दे विल लाइक यार हमने इन्वेस्ट किया ये चीज पे, वी नीड टू सबमिट कुछ भी हो वट एवर दैट मे बी। और तुम आपने कहा कि एंथोलॉजीज इट इज अ वे टू कन्फेस, एंड ऑब्वियसली क्योंकि यार मैंने भी ऐसी स्टोरी कभी नहीं लिखी थी अपने लाइफ में, लाइक आई यूजुअली राइट रोमांस तो मेरे को उस जोन से निकल के एक ऐसी कहानी लिखना जो इट कुड इंस्पायर पीपल, एट द सेम टाइम इट वुड बी रिफ्लेक्ट सम पार्ट ऑफ मी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी स्टोरी है तो कुछ रिफ्लेक्ट करनी चाहिए, राइट? सो या दैट्स इंपॉर्टेंट, और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आई होप कि आने वाले कुछ टाइम पे यू विल अचीव ग्रेट सक्सेस, और सोल विल बी name will make a name for itself. Or recent anthologies, like now you are publishing, I think, a all women anthology, right? So yeah, I think that would be a great place where people can understand you know the mental क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, एक चीज मैं ये शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस के साथ और आपके साथ, ये है कि ना ये जो जेंडर बायस है, ये कहीं ना कहीं इसका ये भी एक रीजन है कि जो मेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी और जो फीमेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये उनका जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो काफी अलग है। लोग समझते नहीं है, दे डोंट फॉर एग्जांपल दे डोंट इफ me and a girl is friend, for the beginning stages, obviously when we are not in a relationship, we understand each other as not as a friend but as a opposite gender. हम ऐसे नहीं देखते कि यार वो मेरी दोस्त हो सकती है, मैं उसके साथ शेयर कर सकता हूँ, बट वी लाइक यार लड़की है, दैट काइंड ऑफ फील। और सेम आई थिंक लड़कियों के साथ भी ऑपोजिट होता है। ये जो गैप है ना वो कम करने की जरूरत है, आपको एज अ पर्सन बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, मुझे कई सारी चीजें लग रही है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली मैं आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हम भी पहले पहले सुनते थे ना फेमिनिज्म, तो कहीं ना कहीं वो जैसे नॉर्मल बॉयज वाला थिंकिंग होता है ना कि यार क्या फेमिनिज्म, वो दे आर ओनली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स। बट एज यू टॉक विद पीपल, एज मुझे इन दिस लॉकडाउन आई हैव मतलब मैंने काफी लोगों लड़कियों से बात की है जो व्हेन दे आर एक्सपीरियंस्ड, they have achieved something in life and they actually know what are the meaning of these terms. And पिछले एक podcast में I talked with Kashish. She is a brilliant writer. When she has a disease and she overcome it, and she just launched her debut poetry novel. It was brilliant talking with her, knowing her vulnerability. And when she actually read one poem from her book, it was just fantastic. क्योंकि यार अब हमारा भी नॉलेज बेस कम ही है, हम जब तक बात नहीं करेंगे हम भी कैसे जानेंगे, ये चीजें हैं। एंड यू आर डूइंग दैट सेम थिंग, यू आर शेयरिंग योर स्टोरीज, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं इट विल टेक टाइम, बट या सोसाइटी में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, पीपल आर ग्रोइंग मोर अवेयर, एंड ये जो जेंडर बायस है ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है। ऑब्वियसली वी कैंट एक्सपेक्ट कि यार अब हर कोई सोसाइटी में कल को पूरा एकदम ओपन माइंड होके बट या change is coming, and I think people like you are actually the epitome or the leader of that race, कि जो थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं कि यार कुछ आ जाए, एटलीस्ट मेरे साइड में जो 5 बंदे हैं मैं उनके अंदर थोड़ी सी वो चेंज ला सकूं, दैट्स इंपॉर्टेंट। मेरा भी ऐसा थिंकिंग रहता है कि यार भले ही मेरी राइटिंग्स को 100 लोग ना पढ़े, अगर 5 लोग भी पढ़ रहे हैं, दे शुड फील कि यार दे शुड रिलेट टू दैट, और वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैंने रिसेंटली आपकी एक वीडियो भी देखी थी जहाँ पे आई डोंट रिमेम्बर, लाइक मैंने कुछ देखी थी 20-25 दिन हो गया, इट वाज लाइक ओपन माइक आई थिंक। Saleh chauvinist. Yeah. Actually, I am not against, I am not supporting feminism, Yeah. but I do support gender equality.
Yeah. And what do I think कि हम लोगों को we need to improve, we need to support feminism so that the manlinist and feminism will Yeah. be equal, and it will be the gender equality. Yeah. Yeah. So I support the gender equality, and it is like अगर हम लोग, क्योंकि औरतों को औरतों की सपोर्ट करने की जरूरत तो है ही, क्योंकि सबसे ज्यादा लैग पुलिंग वही करती है। Yeah. या फिर हमारी मॉम्स ही हमें यही सिखाती कि लड़कियों को ऐसे नहीं करना चाहिए, Yeah, लड़कियां ऐसे नहीं करती। अरे लड़कियां लड़की, इट डजंट मेक सेंस। एवरीवन शुड Yeah. नो हाउ टू डू दैट। लाइक मेरा भाई खाना बनाना जानता है, बहुत अच्छा खाना बनाता है, तो इट्स लाइक आप सिखाओ ना, क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, दे डोंट नो Yeah. हाउ टू स्विच ऑन द गैस इवन। Yeah. 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 तो I do support the feminism, but for the gender equality, but not for the like patriarchy's versions are there, जो Yeah. men आदमियों को इतना ज्यादा परेशान करते हैं, and they don't, they feel pressurized for that. They have some pressure that to take care of their family and to continue their hierarchy something. The Yeah. the generations. So Yeah. 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 they do sacrifice a lot. I support their sacrifice, and I can feel pity for them also. But this is also happening because we don't have the feminism. Yeah. अगर हमारे पास women controlling country रहेगी, तो ये सब चीजें भी कम होगी. Yeah. Yeah. Men will be reduced burden. Yeah. Their burden, and they will be free from their task कि उनको करना ही, and they can also follow their dreams, which they should not do that. जो नहीं करना चाहते as per the society concern, but they wanted to do it always. ये आपने सही चीज की है कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। मैं भी यही बोलता हूँ कि यार जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए कि यू नो आप रेस स्टार्ट करने के लिए एक सेम स्टार्टिंग पॉइंट तो दो उनको, फिर जिसको फर्स्ट होना है वो फर्स्ट होगा, जिसको सेकंड होना है सेकंड होगा, दैट्स द सेकंड थिंग। जब आप एक फैमिली में मेन लाइक इफ बोथ द मेल एंड फीमेल काउंटरपार्ट डिस्कस टुगेदर कि उनके फैमिली के लिए क्या सही होगा, एंड व्हेन यू नो व्हेन द फीमेल सेज कि आई कैन हैंडल दिस थिंग, यार लो जो मेल काउंटरपार्ट है उनको भी लगेगा कि यार चलो सही है कि इफ शी कैन हैंडल, व्हाई आई एम दैट कंसर्न, आई नो दैट शी कुड हैंडल, आई बिलीव इन हर, दैट्स द पॉइंट यू नो। और जो भी आपका स्टैंड पॉइंट है आई कंप्लीटली एग्री, और मैं वही सोचता हूँ कि यार जेंडर इक्वालिटी जो है ना वो प्रमोट करना चाहिए हम लोग को कि यार इक्वालिटी होना चाहिए दोनों में, ठीक है। ऐसा जो देखो कुछ चीजें गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक होंगी, कुछ चीजें मेल्स के लिए स्पेसिफिक होंगी, बट despite that there should be things कि both should get the freedom, you know, जहां पे आप मेल को ज्यादा फ्रीडम देते हो, may it be in sector of education, may it be in raising their voices, वहां पे आप वुमेन को नहीं दबाना चाहिए, वहां पे आप ये नहीं बोलना चाहिए कि तू लड़की है तेरे को चुप रहना चाहिए, दैट्स द पॉइंट यू नो। ऐसा तो कई बार ऐसा मैं देखा हुआ है, ऐसा होता है मेरे घर में तो पूरा ऑपोजिट है, लाइक यू नो व्हेन आई सेड योर ब्रदर कैन कुक, आई कैन कुक एंड माय सिस्टर डज नथिंग, यू नो शी डजंट नो, सो it's okay, like she is small now, but yeah, that is the thing, you know। And before we end this session, we have a segment, you know, we do it in every podcast. This is known as time capsule, okay? So what this basically is ki we like मैं अभी छोड़ दूंगा आपके लिए, you can take your own time, right? आप अपने लिए एक सेल्फ रिकॉर्ड सोचो कि आप सेल्फ रिकॉर्ड कर रहे हो ये मैसेज जो कि आप 5-6 साल बाद सुनोगे। So yeah, this is your present message to your future self. So yeah, the stage is all yours. You can take your time and share your thoughts. Share my thoughts about what I'm going to do in next anything. or like anything. Like one, I will share a little bit example of how this goes. One of my friends, what he shared is that he shared ki Sun, he's talking to his future self. He's saying this, Sun, you should respect this. I know you will achieve that success in your life, but you should always be humble. Like that, you can share anything you want. You know, your future goals, you can just, this is a check, you can say that, you know, you can set your targets all I now. want no, I just have one target in my life: be the good, be kind, be humble, respectful to everyone, like even for your food, for the shelter, for the clothes you wear, like I wear not you. And it's like whatever you will achieve,
always be kind to towards the poor, because or your servants or your maid, because they are also human. I want to feel the empathy. I never want to give up empathy. I want to be human before any before being the part of any religion or any caste or anything. I want to be a human, a kind human, and it doesn't matter how much I achieve, but I will not forget my grounds. I will be down to earth throughout my life. Yeah, you summed it up beautifully, you know. So yeah, before we end this session, anything you want to say to our audience, to your audience who are watching, yeah, you can share anything. You can, Yes, if you want to say anything to the society who traumatized you, I would say, who couldn't believe in you, what you are actually capable of, who stopped you in every step. You can say anything, you know, it's just an no, open stage. You can share anything. I don't want to say anything to them, because this is me because of them only. अगर वो मुझे इतना torture नहीं करते, इतना traumatize नहीं करते, तो मैं उस phase में कभी जाती ही नहीं. Yeah. मैं सोचती ही नहीं अपने लिए कि like मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन ही नहीं आता कभी कि क्या वो सच कह रहे हैं. मतलब like I used to ask from myself since like 4-5 महीने, 6-7 महीने, even years. I have asked this question to me. Was it true? क्या वो like I couldn't accept that. क्या वो जो कह रहे हैं that is me? This is me? No. फिर मैं अपने लिए पॉइंट कैसे करूं, क्योंकि आई बिलीव दैट एक्शंस शुड बी लाउडर देन योर स्पीच. So I don't want to say anything bad to the society. But क्योंकि वो नहीं समझ रहे, तो हम लोग भी नहीं समझ कर उनकी अंडरस्टैंडिंग को फॉर एग्जाम्पल हाँ हम लोग उनको प्रूव नहीं कर रहे ना. अगर हम लोग ही नहीं समझ रहे हैं कि वो लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, we need to understand and accept each other. अगर हम लोग ही वही नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उनको क्या बोलूंगी कि वो क्यों कर रहे हैं. जैसे मैं उनको नहीं समझ रही हूँ, वो मुझे नहीं समझेंगे. तो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड देम एंड आई वॉन्ट टू रेस्पेक्ट देयर थॉट्स एंड आई डोंट वॉन्ट टू जज देम वॉट एवर दे डिड टू मी, बिकॉज उन सब की वजह से ही दे ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी. इवन आई एम स्टिल गोइंग ऑन, आई एम स्टिल फाइंडिंग मी. आई वॉन्टेड टू टेल द ऑडियंस दैट बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत कुछ कहेंगे, हम लोगों को रोना भी आएगा, हम लोगों को गुस्सा भी आएगा, बट हम लोगों को उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके वर्ड्स को, एंड इम्प्रूवमेंट खुद में करना चाहिए, क्योंकि हम दूसरों में कभी इम्प्रूव नहीं कर सकते, हम सिर्फ खुद में इम्प्रूव कर सकते हैं. सो नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ, बिकॉज यू आर द पर्सन हु लिव्स विद यू फॉर द 24 hours, and you are the one who knows yourself better than anyone else. No one else will know you better than you. So be you, do the thing which you think that you are not going to regret. And when you are facing yourself into the mirror, then you can look up to your look into your eyes, and you can speak that you didn't make it because this is your failure. Accept your failures and accept your, क्योंकि हमेशा सक्सेस एक्सेप्ट करना इजी होता है, बट फेलियर एक्सेप्ट करना इज नेवर अ इजी टास्क. सो just struggle for yourself, just for your survival, not anyone else's. And always I think ना कि जो लोग सुन रहे हैं, आपकी लाइफ की स्टोरी सुन रहे हैं, थोड़ा सा ये भी इंस्पिरेशन लो कि यार बी एक्सपेरिमेंटिव, यू नो, यू शुड टेक रिस्क्स. क्योंकि ऐसा कुछ, यू नो, अभी देखो ऐसा है कि अंशिरा डिडंट नो कि लाइक अगर वो ये कॉलेज ज्वाइन करेगी तो उसके बाद क्या होगा, बट शी टुक द रिस्क बिकॉज शी हैड दैट पैशन, शी हैड दैट इंटरेस्ट. उसको नहीं पता है कि इट कुड बी अ फेलियर, इट कुड बी अ बिग मेस अप जितना उसने अभी तक अचीव किया है, बट शी टुक द रिस्क बिकॉज शी वांटेड टू, यू नो. दैट यू शुड एक्सेप्ट कि यार हमेशा, यू नो, डोंट प्ले इन द सेफ साइड, यू नो. बोट, यू नो, वो बोट वाली कहानी है ना कि जब तक वो बड़े नहरों में नहीं जाएगी, उसको पता नहीं है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज. You should explore the uncharted seas, and you know that will make you strong, you know. I think we should not keep searching for the excuses and the person to blame on. हमें सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना चाहिए कि हम ये लोग आज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि
हम लोगों ने, या मुझ में कोई कमी थी, या मैंने कुछ गलत किया, या उनको लगता है कि डोंट जज योर सेल्फ, बट कीप ट्राइंग टू एक्सप्लोर योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को जब भी एक्सप्लोर करो तब तुम अपने आप को एक बहुत ही बेहतरीन इंसान पाओ, क्योंकि कुछ भी बनने से पहले यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन फर्स्ट। मतलब आपने तो बहुत सही कहा। यू नो दे से दैट टू नेगेटिव्स कांट मेक अ पॉजिटिव। अगर आप भी वही चीज करने लगोगे तो इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और यू नो as I say, you are the answer itself. You just need to explore yourself. Anybody who is watching this podcast, this is for you guys. You know, why we talk to people is that we share our own experiences. मेरा podcast शुरू करने का मतलब भी वही था, you know, मेरा से टारगेट नहीं था कि यार मेरे को 500 लोग देखेंगे, मेरे को 600 लोग देखेंगे। यार नंबर्स मेरा कभी एम था ही नहीं, वो मैंने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। मेरा ऐसा था कि अगर 10 लोग भी देख रहे हैं, इफ दे कुड find this conversation useful, they could because podcast is something you could just sit back and listen and you can do all your other stuff. और जब आप ये चीज कर पा रहे हो, अगर आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशनल लग रहा है, या आप आप लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे आपको हेल्प चाहिए, और जितना अभी हमने डिस्कस किया, अगर कोई भी चीज आपको हेल्प कर रही है, so yeah, I am very kind of all Anshita, and I'm talking to you. It's just a great thing, it's just a great feeling we're talking. Or yeah, just before we end this session, thank you Anshita. Aapne, you just gave your time to us. It's just a beautiful feeling. It just मेरा upliftment खुद हो रहा है, क्योंकि it's at my age I am making experiences, and I would be proud that at in my age, at this age of 20, I am making experiences from great persons like you. It's just a pride for me. Thank you, you talked with us. And I hope you all the audience who is watching this would love this podcast. And yeah, meet you in the next session. With that said, this is Rahul Nayak signing off. Bye bye.